on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. This class is especially for BA third year student, and in this class we will talk about a story which is written by an Indian writer, and the writer name is Khushwant Singh and the story name is Karma. And as the name of the story, you can guess this is story based on karma. Karma means in Hindi कर्म, हमारे कर्म पे जो स्टोरी बेस्ड है उसका नाम कर्मा। चलो, जो ये स्टोरी है पब्लिश इन 1989 कलेक्टेड स्टोरी, इनका एक स्टोरी का कलेक्शन था खुशवंत सिंह का जिसका नाम था कलेक्टेड स्टोरी, उसमें पब्लिश हुई थी ये 1989 में। खुशवंत सिंह का लाइफ स्पैन है 1915 टू 2014, बट फिर भी इनकी शॉर्ट बायोग्राफी मैं आपको बता देती हूँ। Khushwant Singh was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. ठीक है, Khushwant Singh was born on 15 August 1915, Haddali, British India, in Kushab district, Punjab, Pakistan. Khushwant Singh was educated in New Delhi and studied law at St. Stephen's College, Delhi and King's College, London. After working as a lawyer in Lahore court for 8 years, he joined the Indian Foreign Service upon the independence of India from British Empire in 1947. He was appointed journalist in the All India Radio in 1915 and then moved to the Department of Mass Communication of UNESCO at Paris in 1956. As a writer, he was best known for his Trachment, secularism, humor, sarcasm and abiding love of poetry. He served as the editor of several literary and news magazines and as well as 2 newspapers through the 1970s and 80s. Between 1918 and 1986, he served as member of parliament in Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India. Khushwant Singh was bestowed with the Padma Bhushan in 1974, ठीक है, but he returned the award in 1984 in protest against Operation Blue Star, in which the Indian Army retired. In 2007, he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India. So इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड मिले हैं। पद्म भूषण इनको 1984 में मिला था, बट उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया था, ठीक है, किसमें, अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार में। एंड देन इनको 2007 में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। खुशवंत सिंह मैरिड टू हिज बैचमेट इन दिल्ली कॉलेज हु इज़ 1 year हिज जूनियर, ठीक है, इन्होंने अपनी एक बैचमेट से शादी करी थी जो इनके दिल्ली कॉलेज में थी साथ में, जिसका नाम था कौवल मालिक। They had a son named Rahul Singh and a daughter named Mala. His wife died in 2001 and Khushwant Singh died of natural cause on 20th March 2014 at his Delhi residence at the age of 98. Okay, now we will talk about his works. His experience in 1947, partition of India inspired him to write Train to Pakistan. Train to Pakistan is a good and best known novel by Khushwant Singh, and also a film which name is also Train to Pakistan. It is based on partition of India and Pakistan, which become his most well-known novel. Khushwant Singh wrote many novels, short stories, essays, etc. देन हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में, स्टोरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपको स्टोरी सबको पता है। कर्मा में क्या स्टोरी चलती है? कर्मा में एक बंदा है मोहनलाल, वो अपनी वाइफ, इसकी वाइफ है लक्ष्मी। जो मोहनलाल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, किससे? ब्रिटिश लोगों से। उस टाइम जब इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी उस टाइम कॉलोनियलिज्म था, हमारे पर ब्रिटिश लोगों का राज था, तब इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टोरी बोल सकते हैं इसको। तो कॉलोनियलिज्म पे बेस्ड थे हम सब। तो जो मोहनलाल है वो इन्फ्लुएंस था किससे? ब्रिटिश लोगों से। वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, खुद को ये समझने लग गया था कि मैं एक अंग्रेज बन गया हूँ। उसका एक्सेंट है वो भी कैसा? इंग्लिश के जैसा, वो ट्राई करता था बोलने का, बट एक्सेंट तो जो हम इंडियन है, इंडियन का इंडियन के जैसा ही रहना चाहिए, हम कितना भी ट्राई कर लें, बट वो जस्ट शो ऑफ करता था हर बात में कि मैं एक फॉरेनर हूँ, है ना, मुझे उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी फॉरेन के लोगों को मिलती है, जितनी ब्रिटिश लोगों को मिल रही है। और उसकी जो वाइफ थी लक्ष्मी, वो बहुत ज़्यादा स्वीट एंड बहुत इनोसेंट थी और एक बहुत
छोटे से टाउन की लड़की थी जो कि बहुत शो ऑफ में बिलीव नहीं करती थी, बहुत सिंपल थी, बट वो अपनी वाइफ को भी मतलब वैल्यू नहीं करता है, उसको गांव की मानता है। तो ये स्टोरी थोड़ी सी इसमें चल रही है, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। कर्मा इज शॉर्ट स्टोरी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1989, सिंग्स कलेक्शन द कलेक्टेड स्टोरी। Karma is about an Indian gentleman named Mohan Lal who tries to adopt upper class English culture and lifestyle such as speaking the Queen's English। वो ट्राई करता है अपर क्लास लोगों को उनकी इंग्लिश को अडॉप्ट करने का। एंड अबाउट हिज रिलेशन विद हिज वाइफ नेम्ड लक्ष्मी हु इज़ ट्रेडिशनल इंडियन वूमन। और ये उस पे बेस्ड है, उसकी वाइफ और उसके रिलेशन पे, जो कि जिसका नाम लक्ष्मी है वाइफ का, और वो एक ट्रेडिशनल वुमन है इंडिया की। ओके, थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? द स्टोरी कर्मा इल्यूस्ट्रेट द फेमस प्रोवर्ब प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। प्राइड्स कम बिफोर अ फॉल। और पूरी जो स्टोरी है वो इस एक प्रोवर्ब पे ही बेस्ड है, क्योंकि जब इंसान में घमंड आ जाता है तो ये मान लो उसका पतन भी आ गया। Pride comes before a fall. It is the story of an arrogant person who feels bad about his country's culture, lifestyle, etc. जो हमारा मोहनलाल है इसमें प्रोटैगनिस्ट, वो अपने आप को फील करता है कि मैं फॉरेनर का हूँ, और उसको ही फील्स अशेम्ड बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि मैं इंडिया का हूँ, मतलब उसको अशेम्ड फील होता है। तो वो ट्राई करता है अडॉप्ट करने का, किसको? ब्रिटिश लोगों की उसको फ्लुएंसी को और सबको। देन उसको क्या है, ही इज condescending to his wife because she is an ordinary woman unable to appreciate his aristocratic English culture. Others are imitation of foreign culture, unhappy married life, contrast of culture and lifestyle, aristocracy and patriotism. कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कौन कौन है इसमें कैरेक्टर? मैं थोड़ा सा आपको कैरेक्टर के बारे में लिख देती हूँ, कौन कौन से हैं, आपको ध्यान में रहे। सर मोहन लाल, ये हमारा हीरो है। मोहन लाल जो है ये एरोगेंट है, एरोगेंट पर्सन। ये अडॉप्ट करने का ट्राई करता है, किसको? फॉरेन कल्चर को। देन उसकी वाइफ लक्ष्मी, his wife, ट्रेडिशनल वुमन, है ना, बहुत सिंपल इंडियन ट्रेडिशनल वुमन है लक्ष्मी। देन अ बियरर, देन a porter, then जो दो इम्पॉर्टेंट इसमें करेक्टर हैं, 2 ब्रिटिश सोल्जर्स, जिनका नाम है बिल एंड जिम। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं, इतने से ही इसमें कैरेक्टर्स है क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी है। देखो अब ट्यून एंड स्टाइल। कर्मा प्रेजेंट अ रिलेवेंट टॉपिक in the typical humorous way of Khushwant Singh. The style of narration used by the author in third person omniscient limited. Third person omniscient limited means जो हमारा नरेटर है उसको मतलब सब पता है कि उसके माइंड में थॉट में क्या चल रहा है, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। To Sir Mohanlal at first, then his wife Lakshmi, which gives the reader a better perspective. ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है इसकी वाइफ के, मोहनलाल के। टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके टाइटल से आपको पता चलता है कि कर्मा मतलब क्या है। कर्म डिपेंड्स ऑन आवर कर्माज। The reason the title for the short story is Karma is because karma is what this story is really about. Karma means that what you do comes back to you. What you do comes back to you. Obviously, जो हम करेंगे वो हमें वापस मिलेगा। As you sow, as you reap, as you sow. That means if you behave badly like Sir Mohanlal,
देन समथिंग बैड विल हैपन टू यू। अगर आप भी मोहनलाल की तरह बैडली बिहेव करते हो आपकी वाइफ के साथ या किसी के भी साथ और एरोगेंसी रखते हो, तो श्योर आपको भी एक दिन वैसा ही कोई पर्सन मिलेगा जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा और आपको बैड फील करवाएगा। इन मोहनलाल केस he gets thrown off the train by two British soldiers because he acts like he is not an Indian and sees himself as a better than his own people because he acts self-satisfied and demanding towards other. Karma makes sure something bad happens to him and contrary to him. मोहनलाल के साथ क्या बैड हैपन्स हुआ था, कर्मा कैसे उसके साथ आए, क्योंकि ये जब ट्रेन में बैठा था तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं बाकी इंडियन लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। ये शो ऑफ कर रहा था। एक इसने इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ा, लोगों को ऐसा फील करवा रहा था कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं ब्रिटिश लोगों की तरह हूँ। पर ये जो दो लोग हैं, जो दो सोल्जर हैं ब्रिटिश के, बिल एंड जिम, इन्होंने इसको ट्रेन से फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि ये इनको कॉपी कर रहा था, इनके जैसे एक्सेंट ट्राई कर रहा था और अपने आप को फॉरेनर समझ रहा था, ब्रिटिश समझ रहा था, तो इन्होंने इसको फेंक दिया। तो ये इसके साथ में क्या हुआ, कर्मा, जैसा इसने किया अपनी वाइफ के साथ और अदर लोगों के साथ वैसा इसके साथ हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, द मैसेज ऑफ द टेक्स्ट आर कल्चर्ड एंड एक्सेप्टिंग हु यू आर। मतलब जो आप हो, जिस कल्चर से, जिस हेरिटेज से आप बिलोंग करते हो, उसको एक्सेप्ट करो, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो, दूसरों को अडॉप्ट करने का ट्राई मत करो, क्योंकि वैसा 100% हो भी नहीं पाता है। फॉर मैंस कर्मा ट्रेवल्स विद हिम लाइक हिज शेडो, फॉर मैंस कर्मा ट्रेवल्स विद हिम लाइक हिज शेडो। कर्मा जो आपका ऐसे पीछा करेगी जैसे आपका शेडो पीछा करती है। इंडिड, वास्तव में, इट इज हिज शेडो, for it has been said, man stand in his own shadow and wonders why it is dark. So the moral of the story is never pretend to be someone's, just be who you are, because at the end of the pretending stage the truth will still revealed. Love your own country, nationality, be proud of who you are and never discriminate people. आप वो एक्सेप्ट करो जो आप हो, जिस नेशनलिटी से आप बिलोंग करते हो, और लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत पैदा करो। ऑल्सो लव योर ओन वाइफ एंड ट्रीट हर गुड, लव इज़ अ गिफ्ट एंड वी शुड ऑलवेज ट्रेजर इट, सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री एंड फैमिली। और अपनी वाइफ को उतना ही प्यार करो जितना उसको मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करती है, और अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए आप रिस्पॉन्सिबल बनो। कुछ इसमें थीम है स्टोरी में, जो आपको स्टोरी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सेल्फ इम्पोर्टेंस कैसे है कि जो हमारा हीरो है मोहनलाल, ये खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा है। एन एरोगेंट पर्सन, एक एरोगेंट पर्सन है, ये खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा है। उसको बाकी इंडियंस क्या है कि अपने सामने ऐसे ही लग रहे हैं जिनकी वो वैल्यू नहीं कर रहा है। हेरिटेज कैसे, ये अपनी खुद के ट्रेडिशंस को, खुद के कल्चर को, हेरिटेज को भूल गया है, और ये क्या ट्राई कर रहा है, दूसरे आइडेंटिटी अडॉप्ट करने की ट्राई कर रहा है। खुद की आइडेंटिटी भूल रहा है, खुद की रूट्स को भूल रहा है, जहाँ ये पैदा हुआ है उन सब चीज़ों को भूल रहा है ये। कंट्रोल इनसिक्योरिटी, अपनी वाइफ पे ये कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, उसको अपने सबऑर्डिनेट मान रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसको ट्रेडिशनल वुमन गंवार बोल रहा है, तो ये उसको अब्यूज़ कर रहा है एक तरह से। तो इसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड टच भी देख सकते हैं इस स्टोरी में हम। शेम फील हो रही है इसको, ही फील अशेम्ड बिकॉज ही इज़ एन इंडियन। इसको यूँ है कि मैं ब्रिटिशर बन जाऊँ। आइडेंटिटी, इसमें खुद की आइडेंटिटी है, ऑब्वियसली ये खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट कर रहा है ब्रिटिशर बनने के चक्कर में, है ना, और उनको अडॉप्ट करने का ट्राई कर रहा है। एक्सेप्टेंस नहीं है, जो ये है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट हु यू आर। एक्चुअली इन दिस स्टोरी खुशवंत सिंह वांट्स टू टेल अस दैट एक्सेप्ट हु यू आर। प्राइड है, ऑब्वियसली प्राइड तो है ही, प्राइड के कारण ही फॉल हुआ है इसको घमंड था खुद पे। इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनलिज्म, और हमको इस स्टोरी में इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनलिज्म भी देखने को मिलेगा। वो कैसे इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनलिज्म देखने को मिला, क्योंकि जो ब्रिटिशर लोग हैं, ये जो दो सोल्जर हैं बिल एंड जिम, इन्होंने इसको ट्रेन से फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि इनका अभी यहाँ पर राज चल रहा है और इनका इफ़ेक्ट है कहाँ पे, इंडिया पे, तभी तो इनकी इतनी हिम्मत हो पाई कि ये मोहनलाल को ट्रेन से फेंक देते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कॉलोनलिज्म भी इसमें स्टोरी में हमको देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू
ट्रांसफॉर्म देयर आइडेंटिटी इनटू समथिंग एल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ अदर्स। किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद की आइडेंटिटी को छोड़ के, खुद की रूट को छोड़ के वो किसी और की एक्शंस को देखकर किसी और की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हिज प्राइड में हैव बीन वाउंडेड, और इसमें जो घमंड था उसी ने उसको दुख में बांध दिया। हिज प्राइड में हैव बीन वाउंडेड, उसी ने उसको घाव दिया है। किसने? घमंड ने, इसके घमंड ने। सो आपको ये स्टोरी पढ़ोगे तो और आपको इसकी थीम वगैरह क्लियर हो जाएगी। वैसे मैंने आपको इन शॉर्ट इसकी थीम बता दी, इसके बारे में बता दिया है कि इस स्टोरी में हमारे खुशवंत सिंह क्या कहना चाहते हैं। एंड लास्ट इसका मोरल स्टोरी का यही है कि एक्सेप्ट हु यू आर, जो आप हो वो एक्सेप्ट करो, एंड लव योर कंट्री, लव योर फैमिली एंड वैल्यू देम। सो ओके, थैंक यू सो मच।